नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा प्रदेश में खास, हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के महाराजगंज दौरे की खबर आपको बताएंगे, जहां पर वक्फ बिल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि वक्फ की जमीनों पर अब स्कूल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब वक्फ बिल the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. दिया जाता था और अब इस वक्फ बिल के पास होने के बाद किस तरह वहां पर स्कूल, कॉलेज और लोगों के रहने के लिए आवास बनाए जाएंगे। जी शबाब। और अभिषेक, इसी के बाद अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वक्फ बिल पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार ने किया है वो उसके लिए वाटरलू साबित होगा, और वाटरलू क्या है ये हमसे आपसे छुपा नहीं है, इतिहास इस बात की गवाह है। बिल्कुल हाँ, अखिलेश यादव आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूरी तरह वक्फ बिल पर बहुत कुछ कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से दोनों सदनों में बिल तो पास करा लिया गया, लेकिन जनता इसका सबक सरकार को चुनावों में सिखाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पक्ष के साथ जिस तरह लगातार ये सब कुछ किया जा रहा है, वो लोग ये बातें भूलेंगे नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के लिए इस वक्फ बिल के पास कराना कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में उनके लिए वाटरलू की लड़ाई में जिस तो तरह साफ तौर से ये बात समझी जा सकती है अभिषेक, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल और जिस तरीके से ये वक्फ का ये जो बिल सरकार लेकर आई और उसे लोकसभा और राज्यसभा से पास कराया गया, अब उसके बाद दोनों तरीके की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं इस बिल के खिलाफ। कांग्रेस और तमाम मुस्लिम संगठन एआईएमआईएम भी पहुंच गई है, कांग्रेस भी पहुंच गई है। तो ये साफ तौर से लगता नहीं कि चीजें भी इतनी आसानी से समाप्त हो जाएंगी। अपोजिशन इसका एक पॉलिटिकली मुद्दा बनाना चाहता है।
बिल्कुल मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से एक याचिका लोकसभा में इस बिल के पास होते ही सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कि बहुत सारी चीजों को ताक पर रखकर इस कानून में बदलाव किए जा रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहती है, लेकिन क्योंकि ये बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, चाहे वो अपर हाउस या लोअर हाउस की बात की जाए, तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरे देश में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं वक्फ बिल को लेकर देखने को मिली हैं। शबाब, कई जगह पर बिल को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी। जब उनसे बिल को लेकर बहुत सारी बातें पूछी गई तो कई लोग इस बिल पर बहुत कुछ बता भी नहीं पाए। लेकिन हाँ, राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो पक्ष और विपक्ष अलग अलग खड़े हो गए इस बिल को लेकर, और विपक्ष की तरफ से पूरी तरह मोर्चाबंदी करने की कोशिश की जा रही है बिल के पास होने के बाद। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। और इस खबर के बाद अयोध्या आपको लिए चलते हैं, जहां पर रामनवमी की तैयारी बहुत जोरों पर है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर पूरी अयोध्या इस समय छावनी में तब्दील हो गई है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं और रामलला के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां दिख रही हैं। बेहतर व्यवस्थाओं के दिशा निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए। और अयोध्या के बाद खबर जौनपुर से, जहां की अटाला अजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जौनपुर से जुड़ गए। अजय, क्या रहा आज कोर्ट में? देखिए, आज अटाला मस्जिद और मंदिर को लेकर के हिंदू स्वराज वाहिनी के पक्षकार और जो है पीस कमेटी जो अटाला मस्जिद के पक्षकार है, आज दोनों की जो है सुनवाई जो है मुंसिफ शहर के कोर्ट में हुई। और वहां पर जो हिंदू स्वराज वाहिनी के पक्षकार के वकील है उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो है
इनको बार बार इनको कई बार साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाता है। W8 में इनको जो है अपने पक्ष को रखने की बात कही जाती है। इनको उनके तरफ से एक ही हवाला दिया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है जिक्र किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का जो है आदेश पारित कर नहीं किया जाएगा। लेकिन आज हिंदू स्वराज वाहिनी के पक्षकार और उनके वकील ने एक अलग एप्लीकेशन दिया कि अगर कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा, लेकिन क्या इस पूरे मामले को साक्ष्य प्रस्तुत किया जा सकता है और इससे पूरे मामले की प्रोसीडिंग की जा सकती है, सुनवाई की जा सकती है, दोनों पक्षों को सुना जाता है। सिर्फ इस हवाले से नहीं देखा जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि किसी प्रकार का आदेश पारित नहीं करेंगे, लेकिन सुनवाई के लिए किसी प्रकार की रोक नहीं है। इसी मामले को लेकर के जो है आज 30 कमेटी की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। लेकिन आने वाले समय में अभी पूरे मामले को देखा जाए तो पूरा आदेश को अभी रिजर्व रखा है और आने वाले दिनों में तारीख भी डिक्लेयर करेंगे और आदेश को भी डिक्लेयर करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए अजय। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। कासगंज से अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास के जन्म स्थल को लेकर के जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंचा है। बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका लगाई है और इस याचिका में बताया गया है कि तुलसीदास गोंडा में पैदा हुए थे, लिहाजा गोंडा के शुकर खेत को तुलसी जन्म स्थान घोषित किया जाना चाहिए। अतुल हमारे सहयोगी कासगंज से जुड़ गए हैं। अतुल, क्या है पूरी जानकारी, क्या विवाद है ये जो कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा है, हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। देखिए सादाब भाई, ये जो तुलसी जन्मभूमि का विवाद है वो आज से नहीं कई सालों से चला आ रहा है। विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो तुलसीदास जी के गुरु थे स्वामी नरहरि दास, वो सोरों में थे, उनका आश्रम सोरों में था और तुलसीदास जी भी यहीं पैदा हुए थे। वहीं कुछ इतिहासकारों का ये मानना है। ओके 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 जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। सवाब भाई, जो ये इतिहासकारों का मानना है वो तीन अलग अलग जगहों को लेके है। वो ये है कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो तुलसी जी हैं वो सोरों में पैदा हुए थे, जो कासगंज में आता है। वहीं कुछ इतिहासकार गोंडा का सूकर खेत उनके लिए मानते हैं, तथा कुछ इतिहासकार का मानना है कि ये चित्रकूट के राजापुर में पैदा हुए थे। ये जो जन्मस्थान का विवाद है तुलसी जी का, ये कई सालों से चला आ रहा है। 2023 में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल गोंडा की तरफ से की गई थी, जहां उसको खारिज कर दिया गया। और अब जो गोंडा के तुलसी जन्मभूमि न्यायालय के अध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवदाचार्य, उन्होंने लखनऊ खंडपीठ में ये याचिका दायर की है और उन्होंने ये मांग की है एक जनहित याचिका दायर करके कि गोंडा को तुलसी जन्मभूमि घोषित किया जाए। इसमें जो हाईकोर्ट है उसने डीएम कासगंज, डीएम चित्रकूट और डीएम गोंडा से जवाब मांगा है। इसके चलते कासगंज में ये नोटिस आया है। अगर हम यहाँ के स्थानीय इतिहासकारों की बात करें तो उनका स्पष्ट कहना है कि तुलसीदास जी ने खुद रामचरितमानस में ये एक्सेप्ट किया है। वो लिखते हैं कि मैं पुण्य जन निज सुनि कथा, कथा सुसूकर खेत, समझो नाय असिबालपन पाड़ियो रहो अचेत। अर्थात जिस पतित पावनी गंगा का उन्होंने जिक्र किया वो कासगंज में ही स्थित है। सादा भाई, ठीक है अतुल, आप नजर बना रखिए इस खबर पर, आगे जो अपडेट्स होंगे फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कासगंज के बाद अगली खबर आगरा से, जहां पर आवास विकास के इलाके में एक इमारत गिर गई और बड़ा हादसा यहाँ पर। मलबे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आगरा के सेक्टर 4 पुलिस चौकी के पास यह हादसा हुआ। खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आगरा से, जहां पर सेक्टर 4 पुलिस चौकी के पास आवास विकास इलाके में एक इमारत भरभरा कर गिर गई और एक बड़ा हादसा हुआ। संजय पूरे हमारे सहयोगी
आगरा से जुड़ गए संजय, क्या जानकारी है, अभी क्या अपडेट है? देखिए, जिस तरह से अभी भी रेस्क्यू कार्य यहाँ चल रहा है और लगातार पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है, पर अभी तक 9 लोगों को निकाल लिया गया है। 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय मंत्री वो यहाँ पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश के जो होमगार्ड मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रजापति वो यहाँ पहुंचे थे। लगातार रेस्क्यू का ऑपरेशन यहाँ चल रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि मलबे में और कोई व्यक्ति तो नहीं है। 9 लोगों को निकाल लिया गया इसमें, जो की हालत काफी नाजुक और गंभीर बनी हुई है, तो आखिरी में निकाले गए थे। ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, राहत और बचाव कार्य में जो भी अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। अगली खबर देवबंद से आपको बताएंगे, जहां पर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस पूरे मामले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो क्या जानकारी है मामले में? साहब, ये थाना नागा नोंजली, यहाँ पर आज बच्चों के बीच एक विवाद हुआ था। विवाद के बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। झगड़े में लगभग 6 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें एक लड़की है जो वहां से गुजर रही थी। वो उसका झगड़े से कोई वास्ता भी नहीं था, उसके सिर में ईंट लगी है, जिसको चंडीगढ़ रेफर किया गया है। थाना नागल क्षेत्र का नोंजली गांव पड़ता है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से बच्चों को लेकर विवाद चल रहा था, जो आज मारपीट में तब्दील हुआ है। जी, और कितने लोग जख्मी हैं और घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल, मैं बात करूं, लगभग 6 लोग घायल हैं और एक लड़की इसमें ऐसी है लगभग 16 साल की, जो वहां से गुजर रही थी। उसका कोई झगड़े से विवाद भी नहीं था, उसकी सिर में ईंट लगी है दोनों पक्षों के झगड़े के दौरान। उसकी हालत बड़ी सीरियस बताई जा रही है, जिसको चंडीगढ़ रेफर किया गया है सहारनपुर से। जी, और विवाद हुआ कैसे, क्या मामला बता रहे हैं लोग? बताया जा रहा है कि 2 बच्चों के बीच विवाद था गांव में ही। तो जब दोनों बच्चों के बीच विवाद हुआ तो एक पक्ष के लोगों द्वारा एक बच्चे की पिटाई कर दी गई, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आए और आमने सामने आने के दौरान दोनों पक्षों में फिर मारपीट और पथराव तक ये चलता रहा। नागल पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस द्वारा कई लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया है। जी।